Today I teach you how to install Oracle 10G in computer or laptops. When you start installation Oracle 10G, this is the first screen seen in your computer. In this first screen, you got two options: basic installation and second one advanced installation. Just go through the basic installation for SQL we just use. Basic installation. Here Oracle home location is provide where Oracle install in your computer. Oracle generally recommend that you can install Oracle or you should install Oracle instead of Windows ऑपरेटिंग होम ड्राइव मतलब कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिस ड्राइव में आपने इंस्टॉल किया है उसमें ओरेकल मत इंस्टॉल कीजिए, उसके अलावा दूसरे कोई भी ड्राइव में आप ओरेकल इंस्टॉल कीजिए, ऐसा ओरेकल रेकमेंड कर रहा है। और ओरेकल डिफ़ॉल्ट ऑल्सो प्रोवाइड डी ड्राइव हियर, so no need to change, just go as it is as default setting. This is the installation type Enterprise Edition 1.3 GB means this software is installed Enterprise Edition, and this edition required 1.3 GB for your storage or software installation. Then this is the default create starter database. When this software Oracle software installed in your computer, it asks you to create a basic database. So if it is not tick, check this one option. Global database name. This is your database name. By default, ORCL is there, which is provide you when your software is installed, and this during this installation it create basic database, create starter database, which database name is ORCL. जो database हम startup create कर रहे हैं during the installation of Oracle 10G, वो database का नाम ORCL रहेगा और additionally it needs 720 MB. ओके देन डेटाबेस पासवर्ड। जब हम ओरेकल इंस्टॉल करते हैं उसके साथ बेसिक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो ये डेटाबेस के साथ डेटाबेस जो बेसिक डेटाबेस है उसके अंदर कुछ यूज़र्स ऑलरेडी क्रिएट करके ही देता है वो। उनमें से ये जो यूज़र्स है सीस, सिस्टम, सिसमैन एंड DBSNMP, ये चार अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के अकाउंट्स है जिसमें DBA टाइप के यूज़र्स लॉगिन होते हैं और पूरे डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो ये फर्स्ट स्क्रीन में आपको बताता है कि ये 4 जो अकाउंट्स है उन अकाउंट के लिए आप कॉमन पासवर्ड सेट कीजिए। तो दैट डेटाबेस पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड वी हैव टू नीड a common password for these 4 accounts. Okay, so just remember it. sysdba you have to provide here, sysdba same for these 4 accounts. These accounts are database administrative type account which has highest priority or highest um, rights to access your software or database. Then press next. This is the second screen. In second screen you get some of prerequisite. This software is check prerequisite for your computer, for your system. So it automatically, if it is succeed, then it will take automatically. Some 2 or 3 options are not automatically succeed, that you have to click user verify. Means you have to check this box like this one. When you check this box, status is user verified is okay. Check all box which are not tick automatically. Then click next. This is a summary of your Oracle installation, software, which packages are installed in your computer. Leave it. Just click on install. Then installation will be start. After completion of 100%, it automatically install all the process. Just wait. You have to 15 minutes or 20 minutes to install. Then here you can check that the process is in process, pending. These all are successfully installed. Then it will be open this one. वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय ही एक ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें भी ये डेटाबेस क्रिएट कर रहा है जो हमने फर्स्ट पेज में लिखा था ना, टिक किया हुआ था कि डिफॉल्ट डेटाबेस वी वांट टू इंस्टॉल ड्यूरिंग दिस सॉफ्टवेयर।
सो ये डेटाबेस असिस्टेंट उसको डेटाबेस को क्रिएट कर रहा है। ये प्रोसेस ये होने देना है पूरा। उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको ये स्क्रीन खुलेगा जिसमें आपको पासवर्ड मैनेजर होता है। ये पासवर्ड मैनेजर जनरली आपके पासवर्ड मैनेज करने के लिए है। हमने 4 अकाउंट्स के लिए तो पहले पासवर्ड वो sysdba दिया हुआ है स्क्रीन 1 में। sys सिस्टम, सिसमैन और dbsnmp, ये 4 अकाउंट के लिए हमें जनरली एसक्यूएल की प्रैक्टिस स्कॉट यूजर्स के अंदर करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे डालूंगा ये पासवर्ड मैनेजर पे मैं टिक करूंगा। उसके बाद ये पासवर्ड मैनेजर खुलेगा। देखो यहाँ पे सिस्टम यूजर, सीस यूजर है, ऐसे बहुत सारे यूजर्स है जो यहाँ पे लिस्ट में दिखाई देंगे। इनमें से हमें स्कॉट यूजर है, जो आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे स्कॉट यूजर आएगा स्कॉट। वहाँ पे उसको चेकबॉक्स ये लॉक है उसको अनलॉक करना है, मीन्स अनचेक करना है। देन पासवर्ड में डालिए टाइगर स्मॉल कैप में, और यहाँ पर भी टाइगर डालिए स्मॉल कैप में, TIGER। देन प्रेस ओके। जैसे ही प्रेस ओके करोगे, दिस इज योर लास्ट स्क्रीन, एंड ऑफ इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको एक यूआरएल देगा। ये यूआरएल फॉर एंटरप्राइज मैनेजर है, और ये यूआरएल फॉर ISQL प्लस के लिए है, जहाँ पे आपका एसक्यूएल रन होगा। जस्ट प्रेस ऑन एग्जिट, मैसेज आएगा, यस प्रेस कीजिए, एग्जिट होगा। एग्जिट होने के within 13 सेकेंड इट विल ओपन योर ब्राउजर एंड एग्जीक्यूट दिस यूआरएल। ये यूआरएल एग्जीक्यूट करेगा एंटरप्राइज मैनेजर की। तो ये एंटरप्राइज मैनेजर का होम फर्स्ट स्क्रीन है, उसमें आप ओके प्रेस कीजिए। उसके बाद वो पूछेगा कि कौन से यूज़र से लॉगिन होना है। यहाँ पे आपको देना है SYS, और पासवर्ड आपको याद होगा फर्स्ट पेज पे दिया था SYSDBA। यहाँ पे दे दो पासवर्ड में SYSDBA, और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में से SysDBA सिलेक्ट करो, SYSDBA लिखा होगा वो सिलेक्ट करके प्रेस ऑन लॉगिन। देन 2-3 बार ओके ओके प्रेस करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज आएंगे एग्रीमेंट वगैरह के। वो सब क्लीन होने के बाद आपका होम स्क्रीन ये खुलेगा, इसको बोलते हैं एंटरप्राइज मैनेजर। ये DBA का पेज है जहाँ से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पूरे ओरेकल को मैनेज करता है, पूरे डेटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये रहा एंटरप्राइज मैनेजर। अब ये एंटरप्राइज मैनेजर का जो होम पेज है उसको स्क्रॉल करोगे तो नीचे आएगा ISQL प्लस। यहाँ पे ये एक लिंक दी हुई है ISQL प्लस, इस पर आप क्लिक करोगे नए टैब में ISQL प्लस ओपन होगा। वो पूछेगा कि ये जो यूज़र है कौन से यूज़र से आपको कनेक्ट होना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम नॉर्मल रखेंगे। देन कंटिन्यू प्रेस। यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। जो यूज़र नेम हमने अभी पासवर्ड मैनेजर में जाके स्कॉट टाइगर अनचेक किया था वही यहाँ पे लिखना है, यानी यूज़र नेम इज अ स्कॉट एंड पासवर्ड इज अ टाइगर। देन प्रेस लॉगिन। दिस इज योर होम स्क्रीन ऑफ SQL प्लस, ISQL प्लस। यहाँ पे आप सारी क्वेरी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब एंड एग्जीक्यूट, इट शो यू नंबर ऑफ टेबल्स अवेलेबल, लिस्ट ऑफ टेबल्स अवेलेबल इन योर यूजर। आपका यूजर क्या है, स्कॉट यूजर है, तो उसमें टेबल कौन कौन से, DPT, EMP, बोनस एंड सेल ग्रेड। ये दूसरा वाला स्क्रीन है। स्टार्ट मेनू में जाइए, ओरेकल के फोल्डर में जाइए, स्टार्ट मेनू में ओरेकल में, उसमें SQL स्टार प्लस लिखा होगा। देखो यहाँ पे SQL स्टार प्लस है, और यहाँ पे ISQL प्लस है, ISQL प्लस। यही डिफरेंट है, ISQL स्टार प्लस और ISQL स्टार प्लस। ये आई फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब एक्सप्लोरर में ओपन होता है, और ये खुद का एनवायरनमेंट है ओरेकल का, SQL का, जिसमें वो ओपन हो रहा है। जब आप ऐसे सिंबल वाले ऑप्शन हो, जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहे हो, वहाँ पे आपको SQL प्लस लिखोगे तो ये आएगा। उसको क्लिक करोगे तो ये लॉगिन स्क्रीन है, जहाँ पे आपको देना है स्कॉट एंड टाइगर। प्रेस ओके, और दी ये वाइट स्क्रीन खुलेगी। ये ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब एंड प्रेस एंटर। जो 4 नेम हमें ब्राउज़र में दिखाई दिए थे, DPT, EMP, बोनस एंड सेल ग्रेड, वही यहाँ से भी दिखाई देंगे लॉगिन में। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।